Not only that, cortisol level down, insulin down, glucose down, CRP down, homocysteine down, TSH down. So these parameters were taken. Blood pressure plus all these 6. So this concludes logically and scientifically that if your mind is not in a stress, then your body begins to get healthy and healthy and healthy. हमारे इस ट्रायल में, जहाँ ट्रायल हो रहा था इंस्टीट्यूट में, वहाँ के एक डॉक्टर, उनको भी बहुत हाई बीपी था, क्योंकि देखो भाई, डॉक्टर हो जाने से चिंता थोड़ी चली जाती है। डॉक्टर की तो उल्टे कई दफे चिंता ज्यादा बढ़ जाती, मरीज कम आएंगे तो भी चिंता। एक डॉक्टर मुझे कह रहे थे, कहते जी जब से मेरे मरीजों ने योग निद्रा करनी शुरू करी मुझे घाटा हो गया है। वो अब आते नहीं हैं, और जब थोड़ा सा भी उनका थोड़ा फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे इवन यू नो फॉर योर हार्ट, even for your heart, if you do regular, what I teach, it's urja dhyan. I teach urja. So if you do urja every day, then believe me, and if you don't believe me, I can get a clinical trial done also for the urja, and then I'll come back with the results in my hand, because you don't trust me, but you trust those scientists in that institute. It's okay, fine. We'll bring a hardcore evidence back, and that tells that if you do it every day, Yoga Nidra and Urja, believe me, you won't be having heart problems, cardiomyopathy, it won't be there. You won't be having palpitation, you won't be having murmur of the heart. जब मन में चिंता चलती है ना, तो दिल भी मरमर करने लग जाता है, अंग्रेजी का मरमर, और हो जाता है वो हिंदी वाला। The murmuring of English gets converted into the Hindi murmur, and that is maro maro, die die die. So much so the stress is bad for you. मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप योग निद्रा करो। मैं कहूंगी योग निद्रा इसलिए करो कि इसके करने से तुमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुमसे अलग है, और ये मन तुमसे अलग है, ये बुद्धि तुमसे अलग है। तुम इसका अनुभव कर सकोगे। अब ये अनुभव आप करते हैं तो साथ ही साथ शरीर को भी लाभ हो, तो कितनी बढ़िया बात। तो मैं कह रही थी कि इस इंस्टीट्यूट में जो एक डॉक्टर थे, उनको हमारे जो पैनल ऑफ द साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपको भी तो बीपी है, आ जाओ तुम भी एज ए सब्जेक्ट आ जाओ। तो पहले तो कहते नहीं नहीं मैं तो नहीं आता, फिर उन्हें लगा चलो कर ही लेता हूँ। जब किया उन्होंने तो 2 महीने बाद जा करके उन्होंने अपनी खुद की दवाई बंद कर दी कि मेरे को अब चाहिए ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। ज्यादा करके किसी का बीपी का दवा शुरू हो जाए तो वो कहते हैं अब जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, बल्कि डोजेज बढ़ाई जाती है, यू नो, टाइम टू टाइम। और यहाँ वो डोजेज कम कम करते हुए बोले अब तो जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है तो मैं क्यों लूं। खैर, तो शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का मेरे से संबंध है, लेकिन मैं मन, इंद्रिय, शरीर नहीं हूं। अब क्या है, जो मृत्यु होती है तो ये शरीर मरता है, मन नहीं मरता। और मन में छलक रहा जो आत्मा का रिफ्लेक्शन, जिसे हमने जीवात्मा कहा, जीवात्मा भी नहीं मरता है। मन में है इच्छाएं, इसलिए शरीर मर जाता है, और इन इच्छाओं को और किए शुभाशुभ कर्म को भोगने के लिए जीव को समय पा करके एक नया घर, एक नया शरीर फिर मिल जाता है, और वहां से उसकी यात्रा फिर शुरू हो जाती। See, if we don't agree to this point, then
you can easily question this, that why should I not do sin? Because once the body dies, everything ends. Then who is going to pay for the sins which you have done, or the good karmas which you will do? There is no reward for that. And if everything ends with the death happening, but that's not true. You will be having another, whether you believe it or whether you don't believe it, it's not question of belief, it is a fact. Like gravitational pull of the earth. Now you can say, I don't believe it, or you can say, I believe it, but does gravity work on your belief, or it is a system? It is a system. So you can jump from 40th floor thinking there is no gravity in earth and I won't get hurt, but when you will take the jump, you will know, surely, because you might not be alive and you might be alive, but the chances are too less when you jump from the 40th floor. Your brain का तो भरथा बन जाएगा, तो तुम बचोगे कहाँ से ये कहने के लिए कि नहीं नहीं gravity होती है. No, you won't be surviving to say this, that the gravity definitely functions. And see, I am the proof, my brain is now scrambled egg now. But the thing is, it is not a belief, it is a fact. One body goes, another comes. Why? Mind is alive. तो किसका जन्म होता है? जीव का जन्म होता है. किसका मरण होता है? तो कौन जाता है शरीर छोड़ के? जो छोड़ के जाता है वो भी जीव होता है. अच्छा, आप पूछते हैं कि ये जाता कहाँ है मौत के बाद? कहीं नहीं जाता, यहीं होता है भाई. जैसे मैं तुमसे सवाल करती हूँ, जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपको आपके शरीर का ख्याल होता है कि शरीर कहाँ पड़ा है? हाँ, और मन का पता रहता है कि मन कैसा दुखी है कि सुखी है? आपको यह मालूम होता है कि अमेरिका में सो रहे हो कि भारत में सो रहे हो? हाँ, कुछ भी पता नहीं है. तो तुम उस समय कहाँ चले जाते हो? कहीं चले जाते हो क्या? तुम तो वहीं हो, पर न शरीर का पता, न मन का पता, न बुद्धि का पता. बिजनेस ठप हो गया कि घर में कोई मर गया है, कि किसी की शादी टूट गई है, कि किसी की शादी हो रही है. एक दफे तुम गहरी नींद में चले गए, तुम्हारा सबसे संबंध कट हो जाता है. पर तुम कहीं चले थोड़ी जाते हो, पर तुम्हारे लिए फिर दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती. फिर जब नींद टूटती है तो फिर तुम कहते हो, अच्छा मैं तो घर में हूँ. Has it ever happened to you that you wake up from your sleep and you wonder, where am I? Where am I? Where am I? You know, sometimes it takes a minute or two and sometimes more to feel, okay, I am in a hotel, I am not in my bed. Mind takes time to recognize where you slept last night. So sleep is like a mini death. Sleep is like a mini death. And death will be a full death, not a mini sleep. And death takes away everything. Not only things, but also your body is taken away. But don't be sad, because soon you will be coming back in a newer body, in a newer set of parents. Whether you believe it or whether you don't, doesn't matter at all. जब तक मन में इच्छाएं हैं, जब तक मन में वासनाएं हैं, जब तक मन से हम शुभ अशुभ कर्म करते रहेंगे, तब तक जन्म होते रहेंगे. ये तो टिट फॉर टैट है. आज तुम इसको दुख दो, कल वो तुम्हें वापस देगा सूद समेत. आज आप अपने एक छोटा बच्चा 8-9 साल का अपनी दादी के पास जाए और कहे, दादी पानी पियोगे? दादी कहती नहीं. फिर आ गया, दादी चाय पियोगे? बोले नहीं. फिर आ गया, दादी तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, एसी ठीक कर दूं? दादी कहती, क्या बात है बेटा, आज बड़े चक्कर लगा रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, क्या चक्कर क्या है? बोले ऐसा है कि मम्मी और डैडी कह रहे थे कि दादी की सेवा करोगे तो सब माल हमको मिलेगा, सब माल हमको मिलेगा, इसलिए दादी की खूब सेवा करनी है, नहीं तो दादी सब कुछ काका को दे देगी.
तो काका को माल नहीं जाना चाहिए, दादी से हमको माल लेना है तो दादी को खुश रखो, तो उन्हें चाय पानी पूछते रहो। अब बताइए, मुझे दादी की सेवा हो रही है कि दादी बैठ के रोएगी कि मेरे को पूछ रहे हैं इसलिए ताकि मुझसे माल ले सके। पर देर नहीं होगी, ये बेटा बहू जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जल्दी ही इनके भी बच्चे बड़े होंगे और फिर जल्दी इनका पोता सवा शेर निकलेगा। अगर बेटा शेर तो पोता सवा शेर। अभी इसको अंग्रेजी में करें तो क्या होगा? इफ सन इज 500 ounce, then grandson will be 1000 ounce. So if you disrespect your parents, mark it, very soon your children will be teaching you the lesson and they will be disrespectful to you, because they have seen you being disrespectful and they have learnt it from you, and that is what it is called, the law of karma is going to function. You give pain to somebody, pain comes back to you. You give suffering to somebody, suffering comes back to you. You serve somebody with love and care will come back to you, and it will come with some added interest into that. So it will be little more. It will be not less, it will be more. So the law of karma says that whenever your body will die, your journey doesn't end with that. Soon you will come back in a newer body, and then the journey begins again, settling the old scores, and surely you will be doing much more new karma, because nobody is living without karma. Nobody can stay away from doing any actions, and actions will bring reactions. That is how it is. तीसरा प्रश्न इन्होंने कहा कि अगर ये जगत मिथ्या है तो मेरा घर कहाँ है? अब पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये मैं क्या है, अभी वही पता नहीं है। तो जब मैं का पता नहीं है तो मैं कहूँ दुनिया सच्ची है या झूठी है, तो दोनों ही परिस्थिति में तुम प्रश्न करोगे कि सच्ची है तो क्यों है और झूठी है तो फिर मेरा घर कहाँ है। तो घर ढूंढने से पहले अपने आप को ढूंढना होगा, पहले अपने आप को ढूंढना होगा। और अभी तो छोकरी ढूंढते हो शादी के लिए, नौकरी ढूंढते हो, घर ढूंढते हो, अपने लिए पहले, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर अपने पोते पोतियों के लिए। अभी तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ कि तुम ढूंढो कि परमात्मा कहाँ है या आत्मा क्या है। अभी तो इसकी फुर्सत ही नहीं लग रही है, अभी उसकी चाहत भी नहीं होती। मैं हमेशा ये चीज महसूस करती हूं कि संसार को भोगने की चाह इतनी बड़ी है कि उसके सामने बाकी सब चीजें छोटी हो जाती, सब चीजें छोटी हो जाती। और सच ये है कि सत्संग भी रखना हो तो तब रखा जाता है जब तुमको कन्वीनियंट हो, छुट्टी का दिन हो, सैटरडे संडे हो, हाँ? तो तुम्हारी कन्वीनियंस से रखा जाता है। और तुम कॉलेज जाते हो तो कॉलेज वालों को कहना चाहिए ना, जी हम तो सुबह 9 बजे से पहले उठ नहीं सकते, तो तुम अपना स्कूल का टाइमिंग लेट करो, 10 बजे शुरू करो, 12 बजे शुरू करो। ये इतनी जल्दी सुबह 7 बजे क्यों करते हो? पर तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है, स्कूल की सर्टिफिकेशन जरूरी है, इसलिए वहां लंबी चौड़ी फीस भी देते हो और जो टाइमिंग वो कहे उस टाइमिंग को फॉलो भी करते हो। धर्म के मामले में भगवान में कोई रुचि तो है नहीं है और ज्ञान में कोई रुचि तो है नहीं, इसलिए तुम कहते हो कि जी हमारी कन्वीनियंस देखो, जब हमें फुर्सत हो तब आप रख लेना। किसी को मैं कह रही थी, मैंने कहा अच्छा अभी सब लोग भारत नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि यहाँ बड़े जरूरी काम है ना, तो भारत आके ज्ञान साधना कहाँ से करोगे तुम? तो इसलिए जब अमेरिका आती हूँ तो एक शिविर या आनंद उत्सव जरूर रखते हैं कि चलो यहीं रहते हुए आप साधना सीख लो और कैसे करना है मन को अंतर्मुखी और कैसे मन को शांत करना है वो सब सीख लो। और अभी न्यू जर्सी में रखा है
3 दिन का प्रोग्राम है, फ्राइडे सैटरडे संडे, सुबह से शुरू होगा, शाम तक चलेगा। और उसमें प्राणायाम भी सिखाते हैं, आसन भी सिखाते हैं, बैठना कैसे वो भी सब चीज़ों को सिखा रहे हैं। जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है सब सिखाएंगे। तो आओ। तो लोग कहते नहीं, मेरे तो मामा के बेटे की भांजी की शादी है। किसकी? मामा के बेटे की भांजी की शादी है। मेरे को तो वहाँ जाना है, मेरे को तो घूमने जमैका जा रहे हैं, हमारा तो एयर टिकट हो रखा है, नेक्स्ट ईयर पक्का। मैंने कहा देखिए, अगले साल की कोई खबर नहीं है, वैसे भी वीजा एक्सपायर हो रहा। हाँ, अगले साल की तो कोई खबर नहीं है कि मैं आऊंगी भी या नहीं आऊंगी, मैं कुछ मालूम नहीं है। पर तुम कितने श्योर हो कि अगले साल तुम तो जिंदा पक्के रहोगे, और तुम पूछते हो जी अगले साल का जो प्रोग्राम होगा ना तो हम उसमें आ जाएंगे। मैं वेल, आई एम नॉट श्योर व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट मोमेंट, एंड यू आर सो श्योर फॉर योर नेक्स्ट 20, 30, 40 years of life. I say, if you need to learn something, learn now. Don't postpone it. Why? See, we postpone things which are not important to us. Things which are important to us, we would like to do it now. You know, your husband is having a heart attack. You don't say to your husband, what is this? You are a fool. Why are you having a heart attack? I was ready to go to a party and you are having a heart attack. Silly boy, wake up. No heart attack. No, stop it. Well, you don't say that. If he's having heart attack, you'll drop everything and you'll take care of the husband. I really hope so you do that. And same goes for the husband and to the wife. You know, sometimes one man was saying that my wife is bada pakki haddi. So why? He said she had a brain stroke, she survived. Then she had a heart attack, she survived. Then she had a huge allergy attack and choking happened and she couldn't even breathe. We took her to ER, she survived. My wife isn't going to die soon.